Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. 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 Bless you, Jesus of Nazareth. Praise your holy name, Lord Jesus. Praise your holy name. Lord, we bless your holy name. Praise you, Lord. Hallelujah. Lord, we magnify you. We glorify you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. जय मसीह की सबको. Thank you, Jesus. After quite a good number of days, the Lord just let me come on the screen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु मसीह आपका. हालेलुया. धन्यवाद हो. Lord Jesus, we bless you. Lord Jesus, we praise you. We magnify you. Hallelujah. आइए एक बार फिर मिलके प्रार्थना करें. हालेलुया. फिर से आग्रह करूंगा आप लोगों से, हम सबके लिए प्रार्थना करें. हालेलुया. फॉर माई होल फैमिली. ब्रदर रमन जी प्रार्थना कीजिएगा. दर्शन सिंह जी, तनुजा सेठ जी, एंड अमरजीत कौर जी, रूबी संगेरा जी, एंजेला ड्रोच, मनीषा एजल मसीह. हालेलुया. नाहर लाजर जी. Will you all join in prayer for us? प्रार्थना कीजिए. ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता जी, let's all join together. Father, we come before your throne of grace and mercy, Father. You are very present help in time of need. And you already promise us in your word by saying, call upon me in the days of thy trouble, and I will hear thee, and I will show thee the things that thou knowest not. Lord, you are a very present help in time of need. Lord, we call upon your name. May your angels surround our home. Lord, may your healing unction be unleashed in the atmosphere all around us, Lord. Your healing unction, your healing anointing, Lord Jesus. Lord, deploy the angelic host. And Yahuwah Rapha, Yahuwah Rapha, Lord, our healing. Yahuwah Rapha, Lord, our healing. Lord, our healing. Yahuwah Rapha, your Lord, our healing. Yahuwah Rapha, your Lord, our healing. Yahuwah Rapha, Lord, our healing. Yahuwah Rapha, Lord, our healing. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you. We magnify you. We magnify you, King of glory. तेरे नाम की जय जयकार करते हैं. तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. तेरे नाम के आगे झुकते हैं. तेरे नाम को सजदा करते हैं. तेरे नाम की हम्द करते हैं, मदा सराई करते हैं. तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है. तेरा नाम जीवित है. तेरा नाम सामर्थी है. तेरा नाम अभिषेक से भरा है. Lord, there is no other name like your name. We bow down to the authority, to the sovereignty, to the goodness, majesty and power of your name, Lord. Hallelujah. For your name has rescued us from the clutches of the enemy, from the paws of the evil one. Lord, you have already translated us into the kingdom.
the marvelous kingdom of light, the kingdom of your Son, the Lord Jesus Christ. हालेलुया, तेरे लहू की जय। मैं तेरे लहू के साए के नीचे अपने आप को, अपने ख़ानदान को लाता हूँ। और खुदावंद ये तेरे पूरे ख़ानदान को जो ऑनलाइन है, दर्शन सिंह को, इनके बेटे को खास करके जिसका आज बर्थडे था, खुदावंद तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। सुनीता कौर को, इनके पूरे घराने को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। वरुण लॉरेंस को, उसके घराने को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। लॉर्ड, आई ब्रिंग आनंद खोकर अंडर द ब्लड ऑफ द लैम्ब। I bring your daughter Angela Droch under the blood, under the precious covering of the blood, and I bind her with the blessings of Abraham. Father, I bless Inderpreet Singh. May your hand be upon him. Bless your servant Raman Khan and his household, Lord Jesus. Lord, let your blessing pour out upon Tanuja Seth. Lord, let your mighty hand of blessing be upon Ravi Prakash Gupta. And Lord, upon Sonia Arora. May your hand be upon her and her household. And Lord, over Manisha Azel Masih, may your hand be upon her and her family. Gurpreet Singh and his household, I cover under the blood of the Lamb, Lord Jesus. Hallelujah. Amarjeet Kaur, be blessed in the mighty name of Jesus. Tanuja Seth, be blessed in the mighty name, in the precious blood of the Lamb. Let your hand be upon Ruby Sanghera and her household in the holy, precious and mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, bless Nahar Lazar. May your hand be upon this person, Lord God. We give you glory, Lord. We give you praise. Hallelujah. Gurdeep Singh and his household, Lord, may his family be blessed in the name of Jesus. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर के वचन में से, मैंने शायद आपके साथ ये थोड़ा शेयर किया है वचन, लेकिन मैं फिर मेरे दिल में ऐसा प्रभु ने डाला कि मैं आपके साथ बांटूं। दो स्क्रिप्चर जिनके ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21 चैप्टर वर्स नंबर 1, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय का पहला वचन, और दूसरा सैमुअल उसके 24 अध्याय का पहला वचन। अगर आप इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे, पहला इतिहास 21 के पहले वचन में लिखा है, सेटन रोज अप अगेंस्ट इज़राइल। शैतान इज़राइल के विरुद्ध में खड़ा हुआ और शैतान ने दाऊद को उकसाया, भरमाया, प्रवोक किया कि दाऊद इज़राइल की जनसंख्या की गिनती करे, इज़राइल का सेंसस ले। अगर हम पढ़ें दूसरा सैमुअल 24 अध्याय के पहले वचन को, सेकंड सैमुअल चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 1 says, the anger of the Lord was roused against David, that he instigated him that he should go ahead and take a census of the children of Israel. तो फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21 वर्स नंबर 1 एंड सेकंड सैमुअल 24 वर्स नंबर 1 एक ही अकाउंट को लिखा गया है। सैमुअल की बुक में लिखा है और क्रॉनिकलर लिख रहा है, लेकिन फर्स्ट क्रॉनिकल 21 ऐसे शो कर रहा है दैट डेविल पर्सनली गॉट रियली मैड एट डेविड, मैड एट इज़राइल, so that he somehow deceived David, that David should take a census of the people of Israel. लेकिन दूसरे सैमुअल 24 अध्याय के पहले वचन से ऐसे लगता है कि जैसे यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसने दाऊद को प्रेरा कि दाऊद इज़राइल की जनगणना करे। तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं, दोनों वर्सेस को, तो हम ये देखते हैं, देखिए वचन को ध्यान से पढ़िए। Satan is a servant of the Lord. Even though he is fallen and God has kicked him out, he still continues to serve the purposes of God. Hallelujah. And if Satan has to do anything, he has to take prior permission from the Lord. शैतान को कुछ भी करने के लिए यहोवा परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती है।
और हम देखते हैं कि शैतान दाऊद के विरुद्ध में और इज़राइल के विरुद्ध में खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दूसरी जगह हम ऐसा पाते हैं कि द एंगर ऑफ द लॉर्ड मूव्ड डेविड, परमेश्वर के क्रोध ने दाऊद को मूव किया। या हम देखें कि स्वयं यहोवा दाऊद को मूव कर रहा है। या हम अगर ध्यान से देखें परमेश्वर या परमेश्वर के एंगर ने दाऊद को मूव किया। या हम गौर से देखें दाऊद के प्राइड ने, मे बी देयर वाज हिडन प्राइड इन डेविड दैट गॉट एक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अहंकार धीरे 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 अंदर अंदर संचय होता गया और उस अहंकार ने, उस घमंड ने, अहंकार और घमंड हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अहंकार और घमंड हमें यहोवा परमेश्वर पे निर्भर होने से दूर कर देता है। तो धीरे धीरे शायद अहंकार बढ़ा जिसने दाऊद को मूव कर दिया, या कोई ईवल काउंसलर दाऊद का जिसने ऐसी काउंसलिंग दी दाऊद को कि दाऊद इज़राइल का सेंसस करे। हम देखते हैं कि जब भी शत्रु को परमेश्वर अनुमति देगा, शत्रु को अनुमति देगा परमेश्वर आपके जीवन में एक कार्य करने के लिए। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय के, अगर आप पढ़ेंगे 31-32 वर्स में, यीशु मसीह कहते हैं, शमौन शमौन, शैतान ने तुझे मांगा, सेटन डिमांडेड दी। वहाँ पे मांगा के लिए ग्रीक वर्ड है डियोमाए, एक जुडिशियल टर्म है। सेटन ने जुडिशली एक रिट दायर की, एक पिटीशन डाली यहोवा की कोर्ट में, एंड थ्रू दैट पिटीशन ही समन्ड पतरस को, शमौन को, उसको सम्मन किया। क्यों किया? क्योंकि अहंकार आ गया, घमंड आ गया। उसने कहा प्रभु दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु ने कहा मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरे ऊपर झूठा धर्म योग चलाया जाएगा, तो पतरस प्रभु को दूर ले जाके डांटने लगा। तो यीशु मसीह पतरस को डांटते हैं। अभी कुछ पल पहले यीशु मसीह इसी पतरस से कह रहे थे, धन्य है तू सिमियन बार जोना, यू आर ब्लेस्ड, तू धन्य है, क्योंकि लहू और मांस ने तुझ पे ये बात प्रकट नहीं की, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। अभी कुछ पल के बाद प्रभु उसे डांट रहे हैं और उसे कह रहे हैं दूर हो जा शैतान मुझसे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं बल्कि शैतान की बातों पे मन लगाता है। वो प्रभु को डांटने लगा कि प्रभु क्रूस पे ना जाए। तो प्रभु कहते हैं शैतान ने मांगा, डियो माए, ही पुट अ पिटीशन इन हेवनली कोर्ट एंड ही डिमांडेड, मांगा शमौन को। पंजाबी में जैसे छज के अंदर दाने गेहूं को डाल के छांटते हैं ना, ऐसे ऐसे ताकि भूसा निकल जाए, ऐसे मांगा शैतान ने ताकि शमौन में से भूसा निकाला जाए। परमेश्वर जब आपको सेटन के हवाले करता है तो आपको रिफाइन करना होता है, मकसद परमेश्वर का आपको पर्ज करना होता है, आपको करेक्ट करना होता है, आपकी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना होता है। इसलिए एडवर्सरी के हवाले आपको किया जाता है ताकि भूसा निकाला जाए आपके अंदर से। अहंकार, घमंड, दिखावा, बनावटीपन, ये बहुत सी बातें मसीहों के अंदर धीरे धीरे जमा हो जाती हैं अंदर। फिर व्यक्ति यीशु मसीह को ऊंचा नहीं करता, अपने आप को ऊंचा करने लगता है। यीशु मसीह की क्रूस उठा के नहीं चलता, अपनी बादशाही, अपनी किंगडम बनाने के एजेंडे को उठा के चलता है। सेल्फ प्रमोशन के लिए जीता है, सेल्फ मार्केटिंग करता है, अपने नाम को ऊंचा बनाना चाहता है। परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं करना चाहता, अपनी एम्पायर बनानी चाहता है, अपने डेरे स्थापित करना, अपनी मिनिस्ट्री बिल्ड करना चाहता है। मैं आपको बताऊं भाई और बहनों, मेरी कोई मिनिस्ट्री नहीं है अपनी। मुझे
वो काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और जो काम मैं करता हूँ वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है, मेरी नहीं है। मैं कोई बड़े फैंसी नाम लेके नहीं चलता मिनिस्ट्री के। कोई मेरा लाइफ का कोई एजेंडा नहीं है। मेरा लाइफ का एजेंडा है केवल यीशु मसीह। मेरा कोई अपना विजन नहीं है, कोई अपना ड्रीम नहीं है, कोई बहुत बड़ी फैंसी बातें नहीं बोलता मैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। यीशु मसीह की माता मरियम काना गलील के घर में सर्वेंट को ये कहती है, आपको मालूम क्या कहती है? जो कुछ यीशु कहे वही तुम करना। हालेलुया। तो भाई और बहनों, रिफाइनिंग, पर्जिंग, करेक्शन, डिसिप्लिन ये लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये अति आवश्यक है आपके मसीही जीवन के करिकुलम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आपको मालूम राजा दाऊद ने गिनती कर ली इसराइल की, और जब उसने इसराइल की गिनती कर ली तो प्रभु बहुत क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा दाऊद से जब परमेश्वर का एंगर अराउज हुआ? तो 2 सैमुएल 24 वर्स नंबर 10 पढ़िएगा। 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 10। राजा दाऊद रिपेंट करता है। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है, क्यों प्रभु कहता है उसको अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट? ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन। ही एक्नॉलेजेस हिज इनिक्विटी सो क्विकली। He immediately bends his knees and begins to cry unto God, because he is a man with a very lowly spirit. So immediately he recognizes that he did something really horrendous and he has really provoked the Lord to anger. So he turns his face to God and he seeks God. He repents. 2 Samuel 24:10 में लिखा है। तो परमेश्वर 3 ऑप्शन देता है जब दाऊद रिपेंट करता है। परमेश्वर दाऊद को 3 ऑप्शन देता है। पहली ऑप्शन सुनिए, 3 years फैमिन इन द लैंड, 3 साल का अकाल पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन, 3 months फ्लीइंग बिफोर द एनिमीज, 3 महीने दुश्मनों के आगे तू भागता रहेगा। एंड थर्ड ऑप्शन वॉज 3 days प्लेग ओवर इजराइल। एंड डेविड चूजेस द थर्ड ऑप्शन। You know why David chooses the third option? Because the option number 1 and the option number 2 will take David out of the hands of the Lord and will throw David into the mercy of man. दाऊद फैमिन आ जाएगा, मनुष्यों की मर्सी के नीचे गिरेगा। They have to go for grain to the other nations, to beg food supplies from the other nations for 3 consecutive years. Or 3 months fleeing from the enemy, all his enemies, you know, the Palestinian, the Amalekites, the Girgasite, the Jebusites, all those enemies, they'll be roused by demons and they will start chasing David. And दाऊद दूसरे लोगों के हाथ में पड़ जाएगा। तो दाऊद ने चाहा हाथ में ना गिरूं, बल्कि मैं यहोवा के हाथ में गिरूं। तो दाऊद ने प्लेग मांगी। देखिए दाऊद कितना अद्भुत व्यक्ति है। दाऊद ने यहोवा से जो प्लेग मांगी, डेविड थॉट दैट द प्लेग विल स्माइट डेविड्स हाउसहोल्ड, बट इट वाजंट सो। डेविड नेवर फुली अंडरस्टूड। द प्लेग स्मोट द एंटायर इजराइल फ्रॉम डैन अनटू बेरशेबा। डैन अनटू बेरशेबा इज अ Jewish colloquialism that signifies the whole country. Plague came upon whole country in instant. 70,000 people died. 70,000 लोग मर गया। इट वॉज मासिव प्लेग। दाऊद फिर यहोवा के चरणों में गिरा और रोने लगा। आपको मालूम दाऊद का हार्ट कितना ज़बरदस्त है। दाऊद यहोवा के आगे रो के कहता है, परमेश्वर ये पाप मेरा है, इसकी सज़ा मुझे दे और मेरे घराने को दे। इसराइलियों ने पाप नहीं किया, इन्हें सज़ा मत दे। तो मैं ये समझता हूँ परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है। वो जो 70,000 लोग मरे दान से लेके बेरशेबा तक, सचमुच उन्होंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया होगा। बिकॉज गॉड इज़ अ गॉड ऑफ जस्टिस। वो न्याय का परमेश्वर है, सच्चा और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। वो इनोसेंट को सज़ा नहीं देगा। तो ये पाप एक्यूमुलेट हो रहा था इजराइल में, जिसकी सज़ा आई इजराइल के ऊपर। आपको मालूम
एक वचन पढ़िए आप, टर्न टू एक्सोडस, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 12। निर्गमन 30 के 12 में लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने यह आदेश दिया इजरायलियों को, व्हेन यू हैव टू टेक सेंसेस ऑफ माई पीपल। प्रभु कहता है जब तुम सेंसेस लो मेरे लोगों का, तो क्या करना? एक ऑफरिंग लेना, ऑफरिंग एज अ रैंसम फॉर देयर सोल्स। जिनका सेंसस लिया जाए, जिनकी गिनती की जाए, उनकी जान के छुटकारे के लिए एक भेंट लेना 1.5 शेकल की, और वो यहोवा के आगे इकट्ठी करना। टेक एन ऑफरिंग, एवरी ऑफरिंग, नो मैटर इट इज स्मॉल और बिग, एवरी ऑफरिंग इज सेक्रेड बिफोर द लॉर्ड। हर भेंटें, हर कुर्बानियां यहोवा के आगे पवित्र होती हैं। तो यहोवा ने निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय के 12 वचन में आदेश दिया था। निर्गमन 30 के 12 और 13 में लिखा है, 1.5 शेकल की एक ऑफरिंग लेना जब इज़राइल की जनगणना की जाए। राजा दाऊद का पाप क्या था? राजा दाऊद भूल गया। किसे भूल गया? भाइयों और बहनों, इस जीवित कलाम को भूल गया। जीवित कलाम को, इसको भूलना बहुत बड़ी भूल है। ये व्यवस्था की पोथी तेरी आंखों से ओझल ना हो, तेरे चित्त से दूर ना जाए, तेरे हृदय में बसी रहे, और इस व्यवस्था की पोथी पे तू दिन और रात मनन करना, तब यहोवा तेरे सारे कामों में तुझे सफल करेगा। परमेश्वर के कलाम को अपने दिल के बीच में रखना, ताकि तू यहोवा के विरुद्ध में पाप ना करे। हे यहोवा, मेरी आंखें तेरी चितौनियों पे और तेरी व्यवस्था पे लगी रहती हैं। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। इस वचन पे दिन और रात मनन करना। अपनी अकल का सहारा मत लेना, अपनी अकल में बुद्धिमान मत बनना, पर अपने सब मार्गों में अपने सृष्टा, अपने रचिता, अपने त्राणकर्ता, अपने मोक्षदाता, अपने मुक्तिदाता प्रभु यहोवा को स्मरण करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए ली जाने वाले ऑफरिंग को तुच्छ जाना। 1.5 शेकल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहोवा के आगे दिस ऑफरिंग वॉज वेरी सेक्रेड। इट वॉज टू बी टेकन बिफोर डेविड वुड गो एंड टेक द सेंसेस। आपको मालूम दाऊद ने क्या शायद प्रिज्यूम किया? फ्लिपेंटली, मे बी डेविड प्रिज्यूम्ड दैट द होल नेशन ऑफ इजराइल बिलोंग्स टू हिम। ही इज द किंग and they are his subject, so he can do whatever he wants to do. So David did not realize, maybe for a split second, that Israel doesn't belong to me, Israel belongs to God. कई बार पासवान लोग भी ऐसे सोचते हैं ना कि कलीसिया तो मेरी है, मैं तो कलीसिया का मालिक हूँ, मैं जो चाहे रेफरेंडम ला सकता हूँ, जो चाहे योजनाएं ला सकता हूँ, जैसे चाहे कलीसिया को चला सकता हूँ। मेरे भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। कलीसिया हमारी नहीं है, कलीसिया जलाली दूल्हा की दुल्हन है। हम तो केवल नौकर हैं। प्रेरित पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की पत्री में? प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह के निमित्त हम तुम्हारे नौकर हैं। कलीसिया को लिख रहा है, वो भी कुरिन्थियों जैसी कलीसिया को, जहाँ पे जनाकारी थी, सेक्सुअल इमोरालिटी थी, डिवीजन थी, जहाँ पे ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं था, जहाँ पे हर तरह के गंदे घिनौने पाप थे। उस कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय कहता है, वी आर योर सर्वेंट्स फॉर क्राइस्ट सेक। वी आर नॉट लॉर्ड ओवर द चर्च, वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ द चर्च, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द चर्च ऑफ जीसस। हम मसीह की कलीसिया के नौकर हैं। सभी प्रेरित हों, बिशप हों, ओवर आर्चिंग बिशप, जो मर्जी टाइटल लगा लो आप, मेजर, माइनर प्रॉफिट, पापा, डैडी, जो मर्जी लगाओ, सब यीशु मसीह की कलीसिया के नौकर हैं। परमेश्वर देखेगा कि आप परमेश्वर की कलीसिया में नौकर की तरह रहे, या आप परमेश्वर की कलीसिया के स्वामी बनना चाहते थे। डेविड थॉट कि इज़राइल तो मेरा है, मैं जो चाहूँ कर लूँ। डेविड ये भूल गया, राजा दाऊद शायद ये भूल गए कि इज़राइल यहोवा का है और यहोवा इज़राइल का है। लेकिन दाऊद राजा का दिल बहुत अद्भुत था। उन्होंने परमेश्वर से ये मांग की
परमेश्वर मेरे पाप की सज़ा इज़राइल को मत दे। भाई और बहनों, मैं नहीं समझता ऐसा कोई पासवान होगा आज आपको मिलेगा। अगर प्लेग आ रही हो और परमेश्वर कहता मैं पूरी चर्च के ऊपर प्लेग भेज रहा हूँ, तो पासवान खड़ा होकर कहे नहीं प्रभु, इस कलीसिया पे मत भेज प्लेग, मेरे ऊपर भेज दे और मेरे घराने पे भेज। ये है सच्चा गडरिया। सच्चा गडरिया वो है भाई और बहनों जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। हालेलुया, हालेलुया। That is why God calls David a man after his own heart. Did you know that when God says David is a man after my own heart, it's a Jewish colloquialism. It means literally, when God says David is a man after my own heart, God inadvertently says David is a man, he knows the secret path to enter into my heart. David was a man who had the hidden keys to access the secret presence of the Almighty. And you know the keys to the intimacy, you cannot use them and access His sacred presence unless and until your heart is aligned with the purposes of God. If you have a corrupt heart, even those keys won't work for you. It all boils down to the heart. As somebody said, the problem of the heart is the heart of the problem, or the heart of the problem is the problem of the heart. Hallelujah. पूरे दिल से उसे ढूंढने। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, मुर्दे तू ही जिलाए प्यार से बोले, लंगड़े तू ही चलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ दविंदर कुलर के लिए, इनके पति के लिए। खुदावंद शिफा के रूह को खोलता उनके ऊपर। कृष्ण कुमार भाई को भी छू, उसके लीवर को मुकम्मल तौर पे चंगा कर खुदावंद। साबी सुरजीत उसके घराने को छू, साहिल भाई के पिता को छू खुदावंद। राज बिन पलके को छू, तेरा खून छिड़कता हूँ। मलकियत गिल पे, इनके ख़ानदान पे आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ। शिफा दे और चंगा कर खुदावंद। विनोद कृष्ण खुदावंद जो कनाडा से, उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। हालेलुया। एंजेला ड्रोच को आपके खून में छिपाता हूँ खुदावंद। लॉर्ड आई ब्लेस दिलजीत सिंह, मे योर हैंड बी अपॉन हिम, आई प्रे। हालेलुया। लॉर्ड जीसस,
I pray in the mighty name of Jesus of Nazareth for Amarjit Kaur and her husband and her family, for Inderpreet Singh. I speak your blessing over Harpal Singh Bajwa and his family. Lord, bless his household in Jesus' mighty name. I pray for Rick Brown for your blessing, Lord. And Lord, I pray for Ravi Prakash Gupta and his household for your blessing. Lord Jesus, I pray that you touch John Thomas and his household. And I pray, Lord, you touch Sunita Guria Kansavar and her household. Touch Mahirji and his household in the name of Jesus. Lord, I bless everyone. Gurpreet Singh and others, Lord, whom I can see. And Manisha Ezel and Brother Lalit from Delhi, Lord. Brother Raman from Delhi, Lord Jesus of Nazareth. And Lord, I pray that you bless every other person, Lord, who's present right now. I plead your blood. तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ. तेरा जलाली नाम ऊंचा हो, तेरे नाम को महिमा मिले. खुदावंद, तेरा धन्यवाद, तूने हमें बचाया, संभाला मुझे, मेरी पत्नी, बच्चों को, मेरे घराने को. खुदावंद, महामारी से बचाया, तूने अपना हाथ रखा हमारे ऊपर, तेरा धन्यवाद हो. खुदावंद, हमारी देहें तेरी कुदरत, तेरी सामर्थ, यीशु मसीह के लहू की शक्ति से भर जाएं. पूरे घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ. खुदावंद, और प्रार्थना करने के लिए लोगों के दिल में बोझ डाल. खुदावंद, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो. खुदावंद, यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. हालेलुया. खुदावंद, वरुण लॉरेंस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी माता के लिए. खुदावंद, उसका ब्रेन यीशु मसीह तेरे खून के द्वारा काम करने लगे, हाथ पांव काम करने लगे. खुदावंद, छू से खुदावंद अपने लहू की कुदरत के द्वारा दया कर. खुदावंद, कृपा कर यीशु नासरी. हालेलुया. तेरी महिमा हो खुदावंद. यीशु मसीह तेरे जलाली नाम